بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناول ہے یا الہی، رائٹ کیا ہے ڈاکٹر سلمان شکور کمبو، باب اول قسط نمبر 24۔ گہری رات کے بعد دن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر رات کے بعد آنے والا دن ایک نیا رنگ اور روپ دیتا ہے اس دنیا کو۔ کچھ پرانے وعدوں کو نبھانے کا موقع، کچھ بکھرے ہوئے پتے سمیٹنے کا موقع، کچھ کھوئی ہوئی یادوں کو دہرانے کا موقع، کچھ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا موقع، کچھ ناکامیوں کو بھلانے کا موقع، کچھ نیا کرنے کا حسین موقع۔ پھوٹ رہی تھی اور تحریم اپنے گھر کے چبارے پر کھڑی امڑتے اجالے کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان کی لامحدود وسطوں سے سفید روشنی کہیں دور سے آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ فلک کی روئی دار لباس سے باہر نکل رہی تھی۔ اس روشنی کے ساتھ ساتھ تحریم کے دل سے پرانے خوف بھی نکلتے چلے جا رہے تھے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ اس کے دل میں پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس اجالے کو خیر مقدم کہہ رہی تھی اور زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو اپنے چہرے پر سجا کر اس اجالے کا استقبال کرنے میں مشغول تھی۔ آسمان پر اب پنچھی بھی اڑنے لگے تھے جو اپنے اپنے گھونسلوں سے چہچہاتے ہوئے نکل کر آسمان میں جھوم رہے تھے۔ آج کافی دن بعد تحریم نے یہ منظر دیکھا تھا، ورنہ اس کی صبح تو غمزدہ اور سوگوار سی ہوتی تھی، مگر اب اس کے پچھلے تمام غموں کو بہلا دینے اور ایک نئی زندگی جینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئی اور سیڑھیاں اتر کر صحن میں آ گئی۔ خالہ جمیلہ بھٹی پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ دھواں بھٹی سے نکل نکل کر آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ روٹی پکانے کی خوبصورت خوشبو ساری فضا کو مہکا رہی تھی۔ تحریم نے خالہ جمیلہ کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے صحن میں لگے پودوں کی طرف بڑھ گئی اور انہیں پانی دینے لگی۔ خالہ جمیلہ تحریم کے اس بدلے رویے پر حیران تھی مگر خوش تھی۔ خدا اس بچی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ خالہ جمیلہ نے مسکراتے ہوئے روٹی کو پلٹا اور پھر دوسرا پیڑا بنانے لگی۔ تحریم پیچھے کھڑی پودوں کو پانی دینے میں مصروف رہی۔ صبح سویرے بسیں گاؤں آ کر رک گئی۔ یہ گاؤں کی آبادی سے دور جگہ تھی جہاں بسیں روکی گئی تاکہ یہاں کیمپ لگانے میں آبادی کو دشواری پیش نہ آئے۔ تمام طلبہ بسوں میں سے نیچے اترنے لگے۔ کچھ جمائیاں لے کر تھے تو کچھ کی آنکھوں میں نیند ابھی باقی تھی۔ کچھ کافی دیر پہلے ہی اٹھ گئے ہوئے تھے۔ ساری رات بس میں سو کر اسی لیے تر و تازہ تھی۔ خیر سبھی بسوں سے اتر کر نیچے آ گئے اور خیمے لگانے لگے۔ چودھری ہمایوں سے کلین ایک پلنگ پر سو رہا تھا، کھڑکی کے پاس ہے۔ یہ پلنگ اور کھڑکی سے آتی دن کی روشنی کمرے کا منظر مکمل طور پر واضح کر رہی تھی۔ چودھری ہمایوں سے کلین کے چہرے پر بے پناہ تھکاوٹ کا احساس اور ساتھ ساتھ نیند میں گم۔ چودھری ہمایوں سے کلین کچھ فاصلے پر فرش پر ایک عورت سو رہی تھی۔ عورت کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اندھے منہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ عورت کا ہاتھ آگے کی طرف پھیلا ہوا تھا اور ہاتھ پر مہندی سے بڑی سی ٹکی لگی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں چوڑیاں، گلے میں زیور، اس کے خدوخال یہی بتاتے تھے کہ وہ ایک طوائف ہے۔ گھر کی نقش و نگار بھی اسی بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ یہ کمرہ کوئی کمرہ نہیں ہے۔ کمرے کی دیواروں پر لگی برہنہ عورتوں کی تصویر اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ کمرہ ضرور کسی طوائف کا کمرہ ہے اور چودھری نے اپنی رات طوائف کے ہاں گزاری تھی۔ خالہ جمیلہ بڑی چادر لیے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تحریم وہاں آ پہنچی۔ خالہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تحریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے بیٹا رضیہ کے گھر، جمیلہ نے کہا۔ خیریت؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ آج سے پہلے تحریم نے کبھی نہیں پوچھا تھا جمیلہ سے۔ خالہ رکیے میں چادر لے کر آتی ہوں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، تحریم نے کہا اور پھر اندر چلی گئی۔ جمیلہ پہلے تو حیران ہوگی کیونکہ 2 سال میں تحریم کبھی بھی گھر سے نہ نکلی تھی۔ تھوڑی دیر میں تحریم چادر اوڑھ کر آ گئی، پھر وہ دونوں رضیہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لاؤ ذرا سمیر، مجھے ہتھوڑا دینا، مومن نے کیل پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ سمیر اور کچھ لوگ اور خیمہ لگانے میں مگن تھے۔ یہ لو، سمیر نے ہتھوڑا مومن کی طرف کیا تو مومن نے ہاتھ بڑھا کر ہتھوڑا پکڑ لیا۔ دھیان سے گر نہ جائے، سمیر نے ہتھوڑا پکڑتے ہوئے کہا۔ تھینکس، مومن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس کس لیے؟ سمیر نے کہا۔ میرا خیال کرنے کے لیے، مومن نے ہنس کر کہا۔ ارے مومن، ہم دوست ہیں یار، تو بھی نہ، سمیر نے ہنس کر کہا۔ شکریہ کہنے میں برا کیا ہے بھلا؟ مومن نے منہ بنایا۔ شکریہ نہ کہنے میں برا کیا تھا؟ سمیر نے بھی منہ بنایا۔ برا تھا بھائی، برا تھا، مومن ہنسا۔ اگر شکریہ نہ کہتا تو یہ تیرا برا سا منہ کیسے دیکھتا؟ مومن نے ہنستے ہوئے کہا۔ باتیں کروا لو اس سے، اور پچھلے 10 منٹ سے یہ کیل تم سے نہیں لگ رہا، سمیر نے چڑھ کر کہا۔ اور تم سے منہ بنوا لو جتنا مرضی۔ مومن ہنسنے لگا تو سمیر بھی ہنس دیا۔
ज़ेबा तितली के पीछे दौड़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो तितली के खूबसूरत रंगों को ही सारी दुनिया समझ रही थी और इस खूबसूरत तितली के पीछे दौड़ रही थी। तहरीम दूर खड़ी उसे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। काश ये जिंदगी इस तितली की खूबसूरत रंगों की तरह ही हमेशा खूबसूरत रहे, हमेशा। तहरीम मुस्कुराकर कह रही थी, कितनी खुश नसीब है ये बच्ची, बहुत ज़्यादा जिंदगी के गमों का इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। तहरीम ने मुस्कुराकर कहा, खुदा कभी इसे वो गम ना दे जो मुझे मिले। ये बच्ची हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। तहरीम ज़ेबा को देख देख कर कह रही थी, जैसे मोमन क्यों ना ये गाँव देखने चले आज। समीर सामान खैमे में रख रहा था और मोमन भी सामान खैमे में इसकी मदद कर रहा था। जब समीर ने मोमन से कहा, बेटा पहले हमें यह काम मुकम्मल करना है, मोमन ने कहा, हाँ हाँ ये भी कर लेंगे, फिर चलेंगे ना। समीर ने कहा, अरे भाई हम यहाँ घूमने फिरने नहीं आए, घूमना फिरना हुआ हो और तुम हो, अल्लाह बचाए तुम, मोमन ने हंसकर कहा। अच्छा तो मैं ज़्यादा घूमता फिरता हूँ, अपना तुम्हें याद नहीं आया बड़ा, समीर ने मोमन को घूरा। अच्छा यार बस बस, मोमन हंसा। तो फिर हम चलेंगे ना, समीर ने कहा। हाँ बस ये सारा सामान रख लें फिर, मोमन ने कहा। शुक्र है तो माना, वरना खुदा की पनाह तेरी मिन्नतें करनी पड़ती थी मुझे। समीर ने कहा, मैं कब माना यार, मिन्नतें करोगे तुम मानोगे तो मानूंगा। मोमन ने हंसकर कहा, अच्छा मैं बताता हूँ तुझे, आया बड़ा मिन्नतें कराने वाला। समीर ने मुँह बनाया। अच्छा नहीं करवाता मिन्नतें, कम से कम ये बिल्ली के जैसा मुंह तो ना बनाओ, मोमन ने हंसकर कहा। तो समीर भी बिल्ली के लफ्ज़ पर हंस गया। वैसे मोमन में सच में बिल्ली जैसा हूँ, समीर कहते हुए हंस रहा था। अरे पागल, इसमें बहुत गहरा मतलब है। मामू कहते हैं सारी दुनिया के लोगों के रंग मुख्तलिफ ज़रूर हैं मगर सब की महक एक है, सब एक ही रूह से मुंसलिक हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई भी जानवर, सब की महक एक ही है। मोमन ने कहा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। समीर ने हंसकर कहा, बाबा तू तो हर बात में फलसफा झाड़ने लगता है, एक तो और तेरे मामू। समीर कहकल गाने लगा लेकिन मोमन अपने ही अल्फाज पर सोचने लगा था। या इलाही तू है कहाँ, तू है कहाँ, इस ज़मीन में रहता है या है तू आसमां, मेरे वजूद में है या है सारा जहाँ, तू है कहाँ या इलाही। हीरा अपने खैमे के बाहर बैठी थी और अपने मोबाइल पर फैज़ की तस्वीर निकाले इसे देख रही थी। हीरा की आंखों में आंसू थे जिनके बायस इसकी आंखें चमक रही थी। मुझे क्यों लगता है कि फैज़ के तुम मेरे बहुत करीब हो, बहुत ही ज़्यादा, मगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल मैं जब से इस मलंग से मिली हूँ एक अजीब सा एहसास हुआ जा रहा है। फैज़, यूँ लगता है जैसे मैं इस मलंग जो जानती हूँ, मगर फैज़ कभी तो अजीब सा एहसास होने लगता है जैसे मैं समझ ही नहीं पा रही। बहुत ही मस्तरब है मेरा दिल, बहुत ज़्यादा। हीरा फैज़ की तस्वीर देख देख कर इससे बातें कर रही थी। यहाँ से कुछ फासले परिंदी और हम हासी तरफ चलते हैं। मोमन गूगल मैप से देख रहा था और समीर भी मोमन के साथ खड़ा था। हाँ समीर, इस नदी के नज़ारे को देखेंगे हम, समीर ने कहा। हाँ पैदल वहाँ तक जाने में आधा घंटा लगेगा। मोमन ने ऊपर मोबाइल पर बने डिस्क्रिप्शन में देखा जहां वक्त लिखा हुआ था। गूगल का बहुत बड़ा फ़ायदा है, सिर्फ जगह ही नहीं बताता बल्कि वक्त भी बता देता है कि कितनी देर लगेगी। समीर ने कहा, काश ज़िंदगी भी गूगल से कुछ सीख ले, पहले से ही बता दे कि कोई भी मुश्किल कब आएगी और कितना वक्त लगेगा। मोमन ने कहा और समीर की तरफ देखने लगा। अच्छा मास्क लगाने लगा हूँ, मोमन तो भी लगा ले, यहाँ जानवरों के गोबर की बू आ रही है। समीर ने बैग से मास्क निकाल कर कहा। फिर मोमन और समीर दोनों मास्क लगाने लगे। खाला ये जंगल कितना सुनसान है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएं, तहरीम ने खाला जमीला से कहा। वो दोनों जंगल में चल रही थी, रजिया के घर से वापस आ रही थी। बेटा रब पर भरोसा रख, परेशान ना हो तो बस अभी ये जंगल ख़त्म हो जाएगा। जमीला ने तहरीम से कहा, खाला मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो लोग यहाँ फिर मेरे पीछे चले आ रहे हैं। तहरीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो लोग जिन्होंने तब मुझे, तहरीम खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। बहुत मुश्किल से आज सुबह इसने खुद को संभाला था, मगर ये जंगल इसके वक्त देखकर नमाजी से फिर से डराने लगा। शाम का डसा इसके जहर की ताब ना लाकर मर जाता, मगर माजी का डसा इंसान मरता नहीं है बल्कि तल तल कर मरता हुआ हर रोज़ ज़िंदगी गुजारता है। जीता तो ये भी नहीं है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, शाम के डसे का दिल बंद हो जाता है, मगर माजी के डसे के बेहस वजूद दिल में फिर भी धड़कता रहता है। वो जीने की आरज़ू भी करे तो माजी का जहर इसे फिर से तड़पाना शुरू कर देता है।
खाला जमीला ने तहरीम का हाथ जोर से थाम लिया। तहरीम का हाथ ठंडा पड़ चुका था। खाला जमीला ने इसके हाथ को रगड़ना शुरू कर दिया। बेटा हिम्मत ना हार, अगर तूने आगे बढ़ने की ठान ही ली है तो मत घबरा। जमीला ने तहरीम के सर पर प्यार किया और फिर वह दोनों चलने लगी। चलते वह दोनों नदी तक जा पहुंची। नदी पर गांव के दो आवारा लड़के खड़े सिगरेट पी रहे थे। तहरीम को देखते ही हंसने लगे। तहरीम पर इनकी गंदी नजरें पड़ी तो तहरीम ने जल्दी से अपना चेहरा डांस लिया और चादर की गिरफ्त खुद पर मजीद मजबूत कर ली। तुझे पता है भट्टो, ये लड़की कौन है? एक लड़की ने सिगरेट का कश उलगाते हुए दूसरे से कहा। हाँ हाँ, वही जो 2 साल पहले जंगल से मिली थी। दूसरे लड़के ने माचिस की तीली जलाते हुए कहा। तहरीम इनके करीब से गुजरते हुए इनकी बात सुन रही थी और वह भी तहरीम को सुना रहे थे। लोग कहते हैं कि किसी ने इसके साथ गलत किया, मगर यह तो हम जानते हैं कि ऐसी लड़कियां खुद ही लड़कों को पटाती हैं। दूसरे लड़के ने माचिस जलाकर फिर सिगरेट को आग लगाने लगा। तहरीम की इनकी बात सुनकर एकदम घबराहट सी होने लगी। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। बेटा, इनकी बातों पर कान मत धरो, खाला जमीला ने आसगी से कहा। खाला तक कर तहरीम की चादर मुकम्मल तौर पर इस पर देने लगी। अरे बाजी, चादर देने की क्या जरूरत? अब हम तो जानते हैं किस हाल में जंगल से ये मिली थी। पहला लड़का हंसते हुए कहने लगा। तहरीम को गुस्सा आ गया और मुड़ी और गुस्से से इनको देखा। हमारे पास भी आ जा, कभी मुंह मांगी रकम देंगे तुझे। दूसरे लड़के ने कहा। अपनी जबान बंद रखो, खाला जमीला ने गुस्से से कहा। अरे और खाला, दिमाग खराब मत कर, तेरी जैसों का इलाज करना हमें बहुत खूब आता है। दूसरा लड़का बोला। देखो तुम दोनों खुदा के लिए हमसे दूर रहो। तहरीम ने खाला का हाथ पकड़कर वहां से भागना चाहा। अब तो तुझे हम यहाँ से निकलने ही न देंगे। इसे बढ़ाया को गुस्ताखी की सजा तो मिलेगी और तुझे भी इसकी सजा भुगतनी पड़ने की। पहला लड़का बोला। बुढ़िया जाएगी इस नदी में और तुझे तो हम खुश करना होगा। हाँ हाँ, और लड़के हंसने लगे। तहरीम ने जमीला का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगी तो इन लड़कों ने इन दोनों को पकड़ लिया। भट्टो, मुझे छोड़ो बुआ को, तहरीम जलाने लगी। नदी की तरफ आते हुए मोमन और समीर दूर खड़े ये देख रहे थे। वो क्या हो रहा है मोमन? समीर ने कहा। मालूम नहीं, शायद वो लड़के। मोमन ने परेशानी से कहा। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? समीर ने कहा। हाँ समीर, अगर जो हम सच सोच रहे हैं वो हो रहा है तो दोनों हमें इन औरतों की मदद करनी है। मोमन ने मारे तशवीश के समीर की तरफ देख कर कहा। फिर वो दोनों इस तरफ दौड़ने लगे। ये चादर उतार। एक लड़की ने तहरीम की चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर अगले लम्हे वो तहरीम से दूर जा गिरा। किसी ने अड्डे जोर से धक्का दिया था। तहरीम ने मुड़कर पीछे देखा तो वो एक लड़का जिसका मुंह मास्क से ढका हुआ था सामने खड़ा था। मोमन ने तहरीम की तरफ देखा तो बस देखता ही नहीं गया और यही हाल कुछ तहरीम का था। आसमान से उतर कर आया, जमीन पे वो फैला, फिर जा बजा हर जा, मेरी आंख मेरा दिल फगी पे, जब हुआ 4 आंखों का जहां।